ایک فائر فائٹر اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہی اس کا پاؤں ایک جگہ پر پڑتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسانی جسم کی ہڈی ہے۔ گل پلازا سے ایک چھوٹے بچے کے جسم کی ہڈیاں مل چکی ہیں، لیکن یہ کیسے ملی ہیں؟ اب کتنے لوگ وہاں پر اندر موجود ہیں اور کتنی لاشیں اب تک آ چکی ہے؟ واقعے کو جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 40 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور کیا اب تک وہاں پر 40 لوگوں کے مزید زندہ رہنے کی کوئی امید باقی ہے یا نہیں ہے؟ ایک تہلکہ خیز رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ ڈریے گا نہیں، جھجکیے گا نہیں، ہمت سے کام لیجیے گا، اور آپ کی ہمت ہی سب سے اہم جز ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر میئر کے خلاف نعرے لگے۔ میئر جس دن یہ حادثہ پیش آیا اس کے 12 گھنٹے کے بعد اسلام آباد کے ایک ریسٹورنٹ میں کیا کر رہے تھے، ایک ایکسکلوزیو تصویر میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو آپ کو بتائے گی کہ اصل حقائق یہ۔ کامران ٹیسوری کے ساتھ وہاں پر معاملہ اب کیا پیش آیا ہے؟ کون کون سے وزیر خاموشی سے آئے، کس کس نے وہاں پر سیاست کی ہے، اصل معاملہ کیا ہے، کراچی کے اس وقت کون کون سی مارکیٹیں بند پڑی ہوئی ہیں، یہ سب میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ لیکن ان سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست کرتا ہوں کہ ڈریے گا نہیں، جھجکیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ سب سے پہلی بات کہ لاشیں کتنی مل چکی ہیں۔ جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں وقت تقریباً 1 بجے کا ہے، دوپہر کا 1 بجا ہے، اور اس واقعے کو ہوئے تقریباً 40 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق پہلے جو لاشیں ملی تھی اور جو پہلے ایک فائر فائٹر وہاں پر جہاں بحق ہوا تھا، ان کی کل تعداد رات تک 6 کے قریب تھی۔ میں نے آپ سے یہ بات بہت واضح طور پر کہی تھی کہ میری معلومات کے مطابق اب تک قریباً 50 کے قریب افراد لاپتہ ہیں اور کل 6 لاشیں مل چکی ہیں، 20 زخمی ہیں۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق 14 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، یعنی کہ 8 مزید لاشیں ملی ہیں۔ جو 8 لاشیں ملی ہیں اس میں سے ایک بچے کی لاش ہے۔ فائر فائٹر جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے اس کا پاؤں ایک جگہ پر پڑتا ہے، اسے ایک محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی جسم کی ہڈی ہے۔ وہ جب اسے دیکھتا ہے تو وہ چھوٹے ہاتھ اور چھوٹے پاؤں ہوتے ہیں، وہ فوراً اس بات کو کہتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی لاش ہے۔ لیکن اب ایک بہت بڑے 2 مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد باقی ساری تفصیلات میں آگے چل کر آپ کو دے رہا ہوں۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لاشیں مل رہی ہیں یہ سب اس حد تک جل چکی ہیں کہ ان کے جسم پر نہ ہی ان کے کپڑے موجود ہیں، نہ ہی کھال موجود ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے جسم کا کوئی بھی اعضا سوائے ہڈیوں کے موجود نہیں ہے۔ اب لاشوں کی پہچان کس طریقے سے کی جائے گی، اس کا صرف اور ایک طریقہ ہے کہ ڈی این اے، لیکن اس حد تک زیادہ ٹیمپریچر میں برن ہونے کے بعد یعنی جل جانے کے بعد کسی کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو اب معاملہ یہ آیا ہے کہ جو 8 لاشیں مزید ملی ہیں ان کی پہچان کس طریقے سے ہوگی کہ یہ کن لوگوں کی لاشیں، اس کے لیے ایک ہی طریقہ اپنایا جائے گا کہ کسی طور پر ڈی این اے کر کر اس بات کو چیک کیا جائے۔ لیکن ابھی تک جو میری معلومات آئی ہے، جن لاشوں کے وہاں سے نکالا گیا ہے، یعنی کہ جن ہڈیوں کو وہاں سے وصول کیا گیا ہے، ان ہڈیوں کو جوڑ کر اس کی سائنٹیفکلی دیکھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، نہ ہی وہاں سے ایسے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ جس سے ہلکا سا بھی شک ہو سکے کہ یہ لاش کس کی ہے یا کس جگہ پر ہے۔ موبائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پن اسی جگہ کا اشارہ نہیں کر رہی ہے کہ جناب بالکل ڈاٹ اسپاٹ یہ ہے اور اس جگہ پر یہ موجود ہے، یہ ابھی تک نہیں واضح ہو رہا ہے۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جن کے اعضاء یا باقیات مل چکے ہیں انہیں کس طریقے سے یہاں پر چیک کیا جائے کہ یہ کن کے ہیں۔ سندھ حکومت کے پاس یہ ٹیکنالوجی انتہائی محدود ہے۔
दूसरा बड़ा मसला यह है कि बकाया जिन लोगों के मोबाइल के सिग्नल्स वहीं पर आकर खत्म हुए थे, अब मैं ये कह सकता हूं कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक उसमें से तकरीबन 25 मजीद ऐसे लोग हैं कि जिनकी जिंदगी के बचने के शवाहिद नहीं मिल रहे। मैं ये बड़े ही दुख और बड़े ही दर्द के साथ ये खबर दे रहा हूं कि मुझे ऐसा मालूमात वहां से मिली है कि जनाब मजीद जो 25 लोग हैं उनके बचने के इम्कानात मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए और सबके लवाहिकीन को सब्र दे। और सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये एक तमन्ना आरज़ू है कि जिसके जो भी अज़ा हैं बाकायदा उसे इस तरीके से मिल सकें कि वो उनके लवाहिकीन तक पहुंचाए जा सकें और बाकायदा ऐसा कोई एक निजाम मुरतब हो सके। अब मैं इसके बाद की आपको खबरें दे रहा हूं और बड़ी अहम खबर दे रहा हूं। क्या यह बात दुरुस्त है? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक नया हरबा शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो बाकायदा उस बिल्डिंग के उस जो गुल प्लाजा की यूनियन और उनके लोगों को जिम्मेदार करार देकर अपना मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे साहनिये के असल जिम्मेदारान कौन है उसकी तरफ कोई भी इशारा नहीं कर रहा। यकीनी तौर पर मेयर इसमें एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है और मेयर के हाथ में ही फायर स्टेशन और फायर ब्रिगेड का पूरा अमला मौजूद है। तो आइए एक एक बात को कुरेदना शुरू करते हैं और मैं आपको तफसील के साथ बताता हूं कि इसका सबसे पहला जिम्मेदार कौन है। जवाब कौन देगा? गुल प्लाजा इतने बड़े हिस्से पर मुश्तमिल है और सबसे पहले ये बात देख लीजिए कि गुल प्लाजा के अंदर 1200 दुकानें मौजूद है। उसके ग्राउंड फ्लोर से निकलने के 3 रास्ते हैं। अगर आपने किसी ने भी गुल प्लाजा को देखा हो तो वो 3 तरफ से खुला हुआ है और एक तरफ वो रंपा प्लाजा के साथ कनेक्ट है। तो 3 तरफ से उसकी साइड्स हैं, उन तीनों साइड्स पर इसके दरवाजे मौजूद हैं। 10 बजे ये दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद एक ही दरवाजा खुला रहता है। जिस वक्त आग लगी है उस वक्त इसके एक दरवाजा बंद था और 2 दरवाजे खुले हुए हैं। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि वहां पर एग्जिट का रास्ता मौजूद नहीं था वो झूठ बोलते हैं। अब इस पूरे बिल्डिंग की इंतजामिया की जिम्मेदारी के साथ साथ इसमें सबसे अहम किरदार SBCA का था, यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का था और इसकी की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है नासिर हुसैन शाह पर। लेकिन आपको इस पूरे साहनिये के अंदर नासिर हुसैन शाह नजर नहीं आ रहे होंगे और कोई भी नासिर हुसैन शाह पर या उस पर तनकीद करते हुए नजर नहीं आ रहा होगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि पहले सईद गनी के पास थी, उससे पहले नासिर हुसैन शाह के पास थी और अब दोबारा नासिर हुसैन शाह के पास है, तो उसमें सिवाय नाजायज तजावुजात और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के अलावा उनकी तरफ आपने अभी तक कहीं पिन करते हुए नहीं देखा होगा। उसके बाद जब आग लगती है तो आग लगने के फौरन 5 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी जाती है, बल्कि उससे भी पहले फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी जाती है। फायर स्टेशन ये जो बात कह रहे हैं कि गुरु मंदिर के पास फंसी हुई थी, ये झूठ और बकवास कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे नियरेस्ट फायर स्टेशन जो यहां पर मौजूद है वो मौलवी अब्दुल हक रोड पर यानी कि सिविल हॉस्पिटल के करीब मौजूद है। सिर्फ एक सड़क सीधी सिविल हॉस्पिटल की सड़क एमजिना रोड को आप छोड़ दीजिए, सिविल हॉस्पिटल से सीधी एक सड़क बोहरा पीर से होती हुई गुल प्लाजा के पास जाती है, जिसका कुल फासला रात के वक्त 3 से 4 मिनट के दौरान या 5 मिनट के दौरान ये पहुंच सकती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तकरीबन 1.25 घंटे तक ये यहां पर नहीं पहुंची है। दूसरा बड़ा मसला यह है कि फायर ब्रिगेड को अब तक उस तरीके से इक्विप ही नहीं किया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी गई है। अगर 12 मंजिल पे आग लग जाए तो आपके पास नारकल नहीं है जो 12 मंजिल पे आग बुझा सके। ये तीसरी मंजिल पर लगने वाली तक इमारत है और पाकिस्तान के पास और कराची के पास जो स्नार्कल्स मौजूद है उसकी ज्यादा से ज्यादा हाइट जो है वो 70 फीट तक जा सकती है। SBCA वो इदारा है कि जो बिल्डिंगों की इजाजत देता है और उसने कराची शहर में इस वक्त 22, 23 और 24 और 25 मंजिलों की इमारतों की भी इजाजत दी हुई है हालिया दिनों के अंदर। मैं आपको यह वाकया बताना चाहता हूं कि इस वक्त अगर 12वीं मंजिल पर अगर आग लग जाए, खुदा ना करे किसी के 12वीं मंजिल पर आग लग जाए, तो फायर ब्रिगेड के पास ये सहूलत ही मौजूद नहीं है कि वो 12वीं मंजिल पर आग बुझा सके। अगर 12वीं मंजिल पर आग लगती है, खुदा ना करे तो उसके बाद 12 मंजिलों से लेकर ऊपर तक की आग जाएगी और फिर 12 मंजिल से नीचे तक की जो आग जाएगी तो इनके पास सिर्फ 5वीं मंजिल तक आग बुझाने की स्नार्कल्स मौजूद हैं। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने ये एक नया शोबदा छोड़ा है कि वो उन तमाम लोगों पर तनकीद करना शुरू हो गए और बाकायदा इसे बल्दिया टाउन फैक्ट्री की तरह का सहानिया करार दे रहे हैं ताकि उनके मलबे से चीजें निकल सके। अब मामला यह है कि जब ये सारी सहूलत थी तो उस
उस वक्त मुर्तजा वहाब साहब कहां थे? उस वक्त रात गए, मुर्तजा वहाब से इनका कोई राब्ता नहीं हो सका था और सुबह के वक्त मुर्तजा वहाब का राब्ता हुआ था जब मुर्तजा वहाब जागे थे। उस वक्त मुर्तजा वहाब यहां पर कराची आने की, अगर इस्लामाबाद में मौजूद थे तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए तो आपको अंदाजा होगा इसी लिबास के अंदर मुर्तजा वहाब रात को भी मौजूद थे, इसी लिबास में ये इस्लामाबाद के वहां पर मौजूद थे और लोग ये कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद के इस कैफे में वहां पर चाय पी रहे थे और या आराम से बैठे हुए थे और यहां पर कराची जल रहा था, यहां पर लोगों की लाशें जा रही थी और पूरी रात उनसे कोई भी किसी का राब्ता नहीं हो सका था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब से इस हद तक फासला रखे हुए है कि जब वहां पर मुराद अली शाह आते हैं तो मुराद अली शाह के साथ सईद गनी मौजूद होते हैं लेकिन मुर्तजा वहाब मौजूद नहीं होते। मुर्तजा वहाब के साथ कोई भी वजीर उनका साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है और मुर्तजा वहाब वहां पर अकेले अकेले ही मूव कर रहे हैं। कोई वजीर उनका साथ, सिंध हुकूमत उनका साथ देने के लिए तैयार नजर नहीं आई है। उसकी सबसे बड़ी वजह मुर्तजा वहाब और सिंध हुकूमत के कई वुज़रा के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात है। रात गए वहां पर, जिस दिन ये वाकया रोनुमा हुआ था वहां पर सिंध के कई वुज़रा आए थे, लेकिन वो वुज़रा आए थे जिनका कराची से ताल्लुक था। अगर आप एक बड़े वजीर अली राशिद को अगर जानते हैं, IT के मिनिस्टर हैं, वो वहां पर आए थे लेकिन उनके पास ना इख्तियार थे ना कुछ था क्योंकि मेयर ने अपने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। मेयर हर दर्जे ये कोशिश करते हैं कि तमाम की तमाम चीजें उनके कंट्रोल में रहे, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अक्सरियत उनके साथ नहीं देती। तो जहां पर HBCA में नासिर हुसैन शाह का बड़ा किरदार है और वजारत बल्दियात भी उनके अंडर में आती है, सेम इसी तरीके से मेयर का भी ये सारा मामला था। तीसरा मामला जो यहां पर था, सिंध हुकूमत इस वक्त किसी तौर पर भी सिंध के इन मामला में, खासतौर पर कराची के मामला को उस तरीके से फोकस नहीं करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सारे दावे, मैं किसी दिन इस बात को वाजे करूंगा कि क्या वाकई में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध का जितना पैसा खर्च किया है, क्या वाकई में सेहत की सहूलियात उस हद तक ही मिलती है, क्या उस पर करप्शन की बहुत बड़ी कहानी है। सिर्फ आप ये जाकर देख लीजिए कि कितने बुनियादी सेहत के मराकज इस वक्त फाल है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो दावे करते हैं वो किस हद तक है। खैर, हमारा नुकता ये नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि मेयर साहब जब वहां आते तो लोग नारे लगाना शुरू कर देते कि मेयर मुर्दाबाद, मेयर मुर्दाबाद, मेयर को इस्तीफा दो, मेयर के खिलाफ शदीद नारेबाजी होती है। और जब वहां पर लोग सवालात पूछते हैं तो उसी वक्त जो है वो मुर्तजा वहाब उनसे उलझना भी शुरू कर देते हैं। एक बात बड़ी अहम यह है कि उसी वक्त गवर्नर कामरान टेसोरी साहब जो पिछली रात को भी आए होते हैं, यानी कि भाईजान दोबारा से फारूक सत्तार के साथ एंट्री देते हैं और एक बार फिर मुश्तइल अफराद वहां पर उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि आप कब तक बातें करते रहेंगे, कब तक ये करते रहेंगे। कामरान टेसोरी साहब उनको साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी हम इस सब कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम इनके लिए सब साथ कर रहे हैं। मगर जो तनकीद करने वाले लोग हैं या जो बात करने वाले लोग हैं उसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब फौरन कराची तशरीफ लाते हैं और हाफिज नईमुर रहमान साहब भी वहां पर पहुंचकर ये कहते हैं कि हम बाद में सारे वाकयात को देखेंगे। मैंने आपसे अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर मौजूद थी लेकिन वो नहीं आई थी और वो आई कब? वो रात को 12 बजे के करीब आती है, अपना पूरा दिन का प्रोग्राम निपटाने के बाद, यानी कि 26 घंटे के बाद वो कराची शहर में सिर्फ जिस जगह सानिया आया है उससे 1.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद थे, लेकिन उस 1.5 किलोमीटर से वो यहां पर नहीं है और रात गया है ताकि वो वहां पर सियासत कर सके। दर हकीकत कराची शहर के गम, कराची शहर के दर्द को कोई भी जान नहीं पा रहा है। सियासत सियासत और सियासत हो रही है, करप्शन 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 और नाअहली हो रही है। ये जितना भी सहानिया पेश आया है इसकी सबसे बड़ी वजह यहां के मौजूद निजाम के अंदर करप्शन और नाअहली है। अगर यहां पर डबल डेकर बसेस सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए लाई जा सकती है, सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए लाई जा सकती है, तो यहां पर ऐसी स्नार्कल्स भी लाई जा सकती है। यहां पर तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि जनाब हम ये स्नार्कल्स लाए थे, झूठ और बकवास है। ये जब जिस जमाने में आपको याद होगा कि वसीम अख्तर मेयर हुआ करते थे और सिंध हुकूमत से फंड नहीं आता था, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कहकर एक फंड की दरख्वास्त की थी जो फंड आया था। और उसके बाद ये जो गाड़ियां आई थी, ये गाड़ियां इमरान खान के दौर में आई, यानी कि गाड़ियां का ऑर्डर पहले हो चुका था और ये गाड़ियां उस वक्त आई थी। तो मामला ये है कि अगर तहरीक इंसाफ भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है तो वो बेकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। सारा मामला ये है कि हर साल एक सानिया रोनुमा होता है। अगर आपके इल्म में हो तो पिछले साल
गुलिस्तान जौहर में लगने वाली आग याद होगी, उससे पिछले साल आपको अर्शी में आग लगने वाली आग याद होगी, उससे पिछले साल आपको कॉपरेटिव मार्केट के अंदर लगने वाली आग याद होगी। मुसलसल पे दर पे वाकयात हो रहे हैं और यहाँ पर उनको इमरजेंसी रेस्क्यू करने का कोई भी निजाम मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अब मामला यहाँ तक कहां पहुंचा है कि सिंध हुकूमत और मेयर साहब जितने भी दावे करते रहे वो बेकार है। बीआरटी के लिए उन्होंने एमए जिन्ना रोड को मुकम्मल तौर पर खोद के रखा हुआ है। 2.5 साल से ये अजाब में मुब्तला है। वो एमए जिन्ना रोड के जहां पर तमाम के तमाम कारोबारी मराकज हैं, वहां पर अपनी नमूद और नुमाइश के लिए एक बस निकालने के लिए अब तक उसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी है। दर हकीकत ये वो प्रोजेक्ट है जिसने कराची की सड़कों को न सिर्फ सुकेड़ दिया है बल्कि बद इंतजामी की वजह से वहां पर के कारोबार को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन सिंध हुकूमत अपनी जिद अपनी डट पर कायम है और सिंध हुकूमत उस वक्त तक कायम है कि जब तक उसके पास आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक कराची के लोग जलते मरते रहेंगे और उनको कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। हर सानिया यहां पर एक बहुत बड़ा सूरत इख्तियार कर जाता है। यहां पर गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है, यहां पर स्ट्रीट क्राइम अपने उरूज पर मौजूद है। यहां पर आप किसी भी बद इंतजामी के हवाले से चीजों को देखना शुरू करें तो आपको अंदाजा होगा कि डंपर यहां पर लोगों की जानें ले लेता है। यहां पर जाली अद्वियात की आपको भरमार नजर आएगी, यहां पर आपको जाली कंस्ट्रक्शन की भरमार आपको नजर आएगी, यहां पर आपको हर चीज में 2 नंबरी नजर आएगी और उसकी सबसे बड़ी वजह यहां का इंतजाम और यहां की इंतजामी हुकूमत है। और अगर इनके खिलाफ बात की जाए तो ये फौरी तौर पर एक सियासी कार्ड और एक लिसानी कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि जनाब ये लिसानी मामला है। मेरा दुख, मेरा अफसोस, मेरा बात ये कि ये शहर आखिर कब तक जाने देता रहेगा। अब तक कराची के अंदर गुज़िश्ता सिर्फ 17 दिनों के अंदर 17 दिनों के अंदर 18 ऐसी हलाकतें हो चुकी है कि जो डंपर बसेस या टैंकर से हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, सबको खामोशी लग जाती है। जो तनकीद करना चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तो उन्हें खरीद लेती है या फिर उनको दबाव का शिकार कर देती है। आवाज हक कौन बुलंद करे? यहां का नौजवान आवाज हक बुलंद कर रहा है और जो आवाज हक बुलंद कर रहा है उसे गद्दार का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उसे कह दिया जाता है कि किसी और लिसानी इकाई से बात कर रहा है, जिसकी जबान कुछ और है इसलिए यह हम पर तनकीद कर रहा है। मामला अब कहां पहुंचने वाला है? मैं इन सारे जज्बाती पहलुओं की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं हकीकी अमली गहराई की बात कर रहा हूं। एमए जिन्ना रोड के अंदर सड़कों को इस हद तक तंग कर दिया गया है कि अगर आप इस पूरे एमए जिन्ना रोड के ऊपर जाना शुरू करें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जितनी भी इमारतें मौजूद है वहां पर इस वक्त किसी भी बड़े फायर ऑपरेशन का होना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है और ये मुमकिनात में से नहीं है। आप ये पूरी सूरत हाल न सिर्फ गुलशन तक जाती हुई नजर आती है बल्कि ये सारी सूरत हाल आपको शहर के कई इलाकों के अंदर नजर आती है। खबर काउंसर या खबर के एलिमेंट के साथ साथ मैं आपको यह बताता चलूं कि आज रात तक मुत्तफक के तौर पर यह ऑपरेशन किसी शक्ल इख्तियार करेगा और रात तक एक बड़ी खबर यह आपको आ सकती है कि जिस बारे में मैंने आपको प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि तकरीबन 25 के करीब ऐसे लोग हैं कि जिनका अब बचने का इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर है और हो सकता है कि उनकी बाकियात मिल सके। लेकिन सिंध गवर्नमेंट और मेयर साहब और फायर ब्रिगेड जिस तरीके से वहां ऑपरेशन कर रहे हैं वहां पर मिलने का इम्कान बहुत ज्यादा कम है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इमारत इस हद तक कमजोर हो चुकी है कि उस पर ज्यादा लोड और किसी तौर पर भी छोटा सा भी क्रैक उस पूरी इमारत को नीचे गिरा देगा। इस सारी सूरत हाल में शायद बाकियात मिलना भी मुमकिन ना हो। हैरत अंगेज तौर पर आपको बड़ी हैरत की बताऊं, जो मलबा गिर गया था और जो इमारत का हिस्सा गिर गया था उसको जांचे बगैर वहां पर सिंध हुकूमत ने यह किया है कि उस मलबे को उठाया है और मलबे को उठाकर किसी और जगह पर फेंक दिया है। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए कि अगर कहीं पर इंसान की बाकियात मौजूद होगी तो वो किस तरीके से मिलेगी। अगर उस मलबे को खंगाला जाता तो समझ में आता वहां पर शावर्स चलाए गए और शावर्स चलाकर वो मलबा कहीं और फेंक दिया गया। यह है सिंध हुकूमत ताकि इनके पास कोई शवाहिद ही ना मिल सके। मजीद इस हवाले से जो तफसीलात मेरे पास आती रहेगी मैं आपको प्रोग्राम में देता रहूंगा, लेकिन उन सब के लिए जरूरी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, करिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। अल्लाह ने के बाद।